Hello, good morning students. So today we are going to discuss about the Millikan's oil drop experiment. Okay. So with the help of that experiment, he determined the charge. He determined the charge on electrons. Okay. Okay. And with the help of that experiment, he also determined the mass of electrons. Okay. So in the previous class, we have studied about the mass charge to mass ratio. Okay, charge to mass ratio. So this ratio was given by J.J. Thomson. Okay, J.J. Thomson. Okay, so he gives the ratio of charge to mass. Okay, charge to mass ratio. Okay, so what is charge to mass ratio? So charge is indicated by E. Okay, and charge and mass is indicated by M. Okay, so mass of electrons. This means that mass of electrons. So this is the charge to mass ratio, and we found that the charge to mass ratio was minus 1.75 into 10 raised to the power 11. Okay, this was the charge to mass ratio. Understood that? Here we use Coulomb. Okay, Coulomb. What is the unit? Charge, unit of charge is Coulomb. Okay, Coulomb, and unit of mass is, what is the unit of mass of electrons? That is a kg. Okay, kg, kilogram. Means you can write this charge means Coulomb to Coulomb kg inverse. Okay, or you can shortly you can write C kg inverse. Okay, so you can write that. So this was the charge to mass ratio. Okay, this was the charge to mass ratio. Now, at that time, J.J. Thomson did not calculate. Okay, did not calculate the charge. What is the charge? What is the charge on electrons and what is the mass of electrons? Okay, उस टाइम उन्होंने उनको ये मालूम है उसका मास नहीं निकाला था उन्होंने और चार्ज भी नहीं निकाला उसको मालूम नहीं था। सिर्फ उन्होंने क्या कैलकुलेट किया था उस एक्सपेरिमेंट के जरिए क्या कैलकुलेट किया था मास टू चार्ज जो कैलकुलेट किया था और वो कितना आया हमारा -1.75 × 10⁻11 कूलम। ओके, इतना आया था। बाद में जो मिलिकन्स और इनके साथ एक और साइंटिस्ट थे उनका नाम था फ्लेचर। ओके, तो उन्होंने क्या किया, एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ओके, दिस वाज द apparatus। ओके, दिस वाज द apparatus which is used by Americans to perform that experiment। Okay, so here he takes an apparatus। Okay, here he takes an apparatus like this, and here he attach atomizer. He attach atomizer here, and this is the telescope from which the droplets, from which when atomizer release, when we spray that atomizers, then the droplets, oil droplets. Here we take oils. यानी इनका देते हैं ऑयल देते हैं to oil here। Okay, this is oil and this is atomizer। Okay, when we pump it, then the droplets जैसा हम स्प्रे करते हैं। ओके, जब हम स्प्रे करते हैं ना ऐसा, तो ऐसा प्रेस करने के बाद में क्या निकलते हैं उसमें से, और ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वेपर्स के फॉर्म में। वो छोटे छोटे रहते हैं, टीनी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं उसमें। ओके, तो ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स क्या हो जाएंगे, वहां से निकलेंगे। ओके, और
इन्होंने क्या किया था, उस ये जो apparatus है, उस apparatus में he placed 2 plates. Okay, first is negatively charged plate. Here this is a negatively charged plate and this is the positively charged plate. Okay, this is the positively charged plate. This is positively charged plate. तो 2 प्लेट्स उन्होंने वहां पर रखी और यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, एक स्मॉल होल किया था. ओके, एक स्मॉल होल यहाँ पे बनाया था. किस लिए बना था? जब ये ऑयल ड्रॉप्स, टिनी ऑयल ड्रॉपलेट्स जब यहाँ पे गिरेंगे तब क्या होगा, कुछ ड्रॉपलेट जो है उस होल के जरिए कहां पर आएंगे, उस होल के जरिए यहाँ पर आएंगे. ओके, क्यों आएंगे? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. ओके, अंडरस्टूड दैट? So he arranged this apparatus like this. He placed 2 plates. Okay, positively charged plates and negatively charged plate. Okay, and again he placed here the telescope. You can see microscope here. Okay, so from this he observed the velocity of falling oil droplets. Okay, इसके लिए इन्होंने ये यहाँ पे रखा था दोस्तों, जब ये छोटे-छोटे ऑयल ड्रॉपलेट्स है जब यहाँ पे गिरेंगे, ओके, जब यहाँ पे गिरेंगे तो उस ऑयल ड्रॉपलेट्स की जो मूवमेंट है, ओके, उस ऑयल ड्रॉपलेट की जो मूवमेंट है वो ऑब्जर्व करने के लिए इन्होंने क्या रखा था, वहाँ पे टेलीस्कोप रखा था. ओके, और क्या रखा था उन्होंने, यहाँ पे उन्होंने एक्सरे सोर्स रखा था. ओके, एक्सरे, यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, एक्सरे सोर्स है. ओके, जब ये ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे गिरेंगे तब उस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त यहाँ पे उन्होंने क्या रखा था, एक्सरे रखा था. इसलिए जब ये ऑयल ड्रॉपलेट्स यहाँ पे गिरेंगे तब क्या होगा, एक्सरे सोर्स से एक्सरे पास करेंगे. ओके, इस ड्रॉप से पास करने के लिए और उसकी जो मूवमेंट है वो ऑब्जर्व करने के लिए इन्होंने वहां पे टेलीस्कोप रखा था. एक्सरे ले रखे थे, एक हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन मींस रेज, एक्सरे उस ऑयल ड्रॉपलेट से पास करने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक्सरे रखा था. ठीक है, तो ये हो गया. और इसके साथ ये जो प्लेट्स है, ओके, दिस इज नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एंड दिस नेगेटिवली चार्ज प्लेट आर इंटरकनेक्टेड. ओके, आर इंटरकनेक्टेड with the help of battery. Okay, so यहाँ पे उन्होंने बैटरी रखी. दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल्स एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल्स. ओके, पॉजिटिव टर्मिनल्स कभी भी बड़ा रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने ऐसे अरेंजमेंट की थी. ठीक है, हम यहाँ कैसे करते हैं समझ में आपको. तो ये जो प्लेट्स है, ये जो प्लेट्स है उन्होंने और अटैच किए थे बैटरी को. ठीक है, तो ये जो है पॉजिटिव प्लेट है. ओके, तो ये नेगेटिव प्लेट है. अभी इसकी हम प्रोसीजर देखते हैं, उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया उन्होंने. सबसे पहले आपको पता है ये एटोमाइजर की जगह उन्होंने स्प्रे किया था. ओके, स्प्रे किया. स्प्रे करने के बाद में बहुत सारे ऑयल ड्रॉपलेट्स यहाँ से निकले. टीनी ड्रॉपलेट्स पास निकले और उन्होंने ये जो सरफेस है, कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स इस सरफेस पे फैल गए. ओके, और कुछ जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है, few oil drops pass through these holes. Okay, and pass through that holes and entered into the lower compartment. Okay, entered into the lower compartment. This is the lower compartment. Understood that? So जब
ये पास हो गए थे, तो उन्होंने ये जो उनकी कुछ वेलोसिटी होगी, ओके, उनकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो वो पास क्यों हो गए यहाँ से, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उस ऑयल ड्रॉप पर एक्ट हो रहा है, ओके, बिकॉज ऑफ द gravitational force these oil droplets pass through that force and move toward the lower compounds with velocity, okay, understood that point, okay, next अभी क्या किया इन्होंने, यहाँ से एक्सरे सोर्स से एक्सरे पास किया, हाई एनर्जेटिक एक्सरे इन्होंने पास किया, ओके, हाई एनर्जेटिक एक्सरे इन्होंने यहाँ से पास किए। जब इन्होंने ये पास किए तो ये कहाँ पे पड़े, उस ऑयल ड्रॉप्स पे, ओके, ऑयल ड्रॉपलेट्स पे पड़े, ठीक है। ऑयल ड्रॉपलेट्स पे पड़ने के बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्या हो गया कि ऑयल ड्रॉपलेट्स पे पड़ने के बाद में क्या होगा कि ये जो एक्सरेज थे वो हाई एनर्जेटिक थे, जब उन पे ये हाई एनर्जी पड़ी तो क्या हुआ, उसमें उस ऑयल ड्रॉप में जो इलेक्ट्रॉन्स थे, समझो ये ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, ये ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बाहर निकल गए यहाँ से, ठीक, ऑयल ड्रॉपलेट से बाहर निकल गए, ठीक है। और अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, यहाँ पे बम्बार्ड किया, हाई एनर्जेटिक रेस यहाँ पे आके यहाँ पे बम्बार्ड किया, बम्बार्ड करने की वजह से क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए, इजेक्शन हो गया वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का, समझ में आपको, ठीक है। तो इजेक्ट होने के बाद में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, नेगेटिव चार्ज निकल गया, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गए, समझ में आपको, अंडरस्टूड है। तो अभी ये जो इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे निकले होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ पे चिपक गए, इसमें चिपक गए, ठीक है, यहाँ पे ऐसे फॉर्म हो गया, ऐसे, ठीक है, ऐसे फॉर्म हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे अटैच हो गए इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे अटैच हो गए, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अटैच हो गए, समझ में आपको। अब क्या किया इन्होंने, ये जो हाई वोल्टेज का करंट बैटरी से उन्होंने पास किया, ठीक, इन्होंने पास किया, तो क्या हुआ, हाई वोल्टेज करंट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, ठीक, यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, समझ में आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने की वजह से ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है, मतलब ये क्या हो गए, अभी इलेक्ट्रिकल चार्ज, नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ये बढ़ गए यहाँ से, ठीक, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज जो नेगेटिव चार्ज है उस इलेक्ट्रॉन की वजह से वो बढ़ गया, तो नेगेटिव ये ऑयल ड्रॉपलेट्स कैसे बन गए, नेगेटिव चार्ज बन गए, ओके, नेगेटिव चार्ज बन गए, मतलब ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया वो इंक्रीज हो गया, ओके, तो ये नेगेटिव चार्ज बन गए पूरे। तो नेगेटिव चार्ज बनने की वजह से जब हमने यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास किया हाई वोल्टेज का, क्या होगा, ये जो नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट्स थे वो उस इधर मूव होने लगे, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होने लगे, अंडरस्टूड है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होने लगी उनकी, और ये जो है क्यों मूवमेंट होने लगी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, दिस वाज द पॉजिटिव चार्ज प्लेट, ओके, दैट्स व्हाई दिस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मूव toward the upward directions, okay, pointing toward the upward directions, okay, and you know that okay, you know that this electric force
फोर्स अभी एक्ट हो रहा है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है हम कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Q into E। अंडरस्टूड दैट? Q क्या है, यहाँ पे चार्ज है। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम, चार्ज। ये चार्ज है और ये हो गई उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि उस ऑल डॉट्स ने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की थी हाई वोल्टेज की वजह से। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इसके बराबर हो गया Q into E के बराबर हो गया। समझ में आपको? अंडरस्टूड है? So this pointing toward the upward direction, this oil droplet, this is the oil droplet. Okay, negative charge oil droplets pointing toward the upward direction, positive ends. Okay, positive plates की तरफ ये upward direction में। ओके, और यहाँ पे जो है मैंने बोला था ये जो है इलेक्ट्रिक फोर्स तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरा फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है, यहाँ पे मैंने बोला था आपको ग्रेविटेशनल फोर्स पे एक्ट कर रहा है। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स भी यहाँ पे एक्टिवेट मींस एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके बराबर क्या है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो m into acceleration due to gravity, okay, mg। okay, so this mass into g is gravitational force। okay, this gravitational force is equal to the gravitational force is equal to the mass into acceleration due to gravity। Mass of here oil droplets, okay, means you can say weight, here you can say weight of oil droplets। okay, oil droplet, so weight of oil droplets W, you can say W is equal to the mass of electrons, mass of oil droplets multiplied by acceleration due to gravity। Understood that? So here, so this acceleration due to gravity, this gravitational force is present here in lesser extent। okay, इसकी वैल्यू जो है वो कैसी रहेगी, लेसर वैल्यू रहेगी जब हम हाई एनर्जी अप्लाई करते हैं, हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तब ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू उस ऑयल ड्रॉपलेट्स पे कम रहेगी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आपको? दैट्स व्हाई these oil droplets move toward the upward direction। ओके, ऐसा ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं अपवर्ड डायरेक्शन को मूव करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, अंडरस्टूड दैट? नाउ अब क्या करते हैं हम, ये जो वोल्टेज है अब हम इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, अगर हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो जो ऑयल ड्रॉपलेट से ऊपर जा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे हम, उसका जो वोल्टेज है मेंटेन करेंगे। ओके, मेंटेन करने के बाद में क्या होगा, एक ऐसा वोल्टेज रखते हैं वहां पे, उस वोल्टेज पे ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है वो सस्पेंड हो। ठीक है, उस एरिया में सस्पेंड हो, मतलब ऐसे रहे। ओके ओके, समझ में आपको? ये पहले से आयनाइजेशन हुआ था, आयनाइजेशन की वजह से जो ऐसे पास किए थे तब आयनाइजेशन हुआ था। ओके, आयनाइजेशन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए थे वहां से, और इलेक्ट्रॉन्स निकलने की वजह से ये उस पे जाके अटैच होते हैं, क्लिंग होते हैं यहाँ पे। ओके, क्लिंग होने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो गए। तो ये जो ड्रॉपलेट्स है अभी इस फॉर्म में है। ओके, तो जब हमने वोल्टेज मेंटेन किया, बराबर एक प्रॉपर वोल्टेज रखा, किसके लिए रखा, तो वो ऑयल ड्रॉपलेट्स है, वो ऑयल ड्रॉपलेट्स यहाँ पे सस्पेंड हो गए। ओके, मतलब ना वो उधर गए ना नीचे गए। ठीक है, ऊपर गए ना नीचे गए, सिर्फ बीच में रह गए। ओके, यहाँ पे सस्पेंडेड फॉर्म में रह गए।
Okay, now when you observe through that telescope, अभी इस ऑर्बिट को हमने किससे ऑब्जर्व किया, टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया। ओके, तो हमको पता चला क्या, जब हमने इसको इस मोमेंट वेलोसिटी हमने इसकी कैलकुलेट की। ओके, तो इसकी जो वेलोसिटी है, ये ऑयल ड्रॉपलेट्स का जो बिहेवियर है हमने वहां पे कैलकुलेट किया। समझ में आया आपको यहाँ तक? ठीक है, तो हमको पता चला, so with the help of that milligrams find the mass of electrons, charge of electrons. Okay, and that charge of electrons, ये जो Q है, ये जो Q है, Q charge of electrons, charge on all opposites। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, चार्ज ऑन चार्ज ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है उस ऑर्बिट पे। ओके, वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, चार्ज किसके बराबर है, इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल। ओके, इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वैल्यू माइनस 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम। ठीक है, ये जो वैल्यू थी हमने जब इन्होंने टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया तब उनको पता चला कि ये चार्ज है इस कॉम्प्लेक्स पे, वो जो चार्ज है, ओके, वो किसके बराबर है, इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू। ओके, इस वैल्यू के मल्टीपल में वो बदल रहा है एटम टू एटम के ऑयल ड्रॉपलेट्स टू, अगर हमने यहाँ पे ऑयल ड्रॉपलेट्स लिया है, ओके, तो ये कैसे बदल रहे हैं, इस वैल्यू के मल्टीपल में बदल रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे यह नंबर क्या है, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 1 so on, या हम कुछ भी ले सकते हैं। ओके, तो चार्ज जो है यहाँ पे ऑयल ड्रॉपलेट्स का लेते हैं हम। ओके, ऑयल ड्रॉपलेट्स का लेते हैं। ओके, एक ऑयल ड्रॉपलेट्स, ओके, अगर हमने यहाँ पे 1 ऑयल ड्रॉपलेट्स ड्रॉप किया, 1 ऑयल ड्रॉप लिया अगर हमने, तो चार्ज Q ऑफ 1 ड्रॉपलेट, 1 ड्रॉप। ओके, तो 1 ड्रॉपलेट कितना होगा, 1 into minus 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb was the charge on electrons। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना आता है, E is equal to 1 into जाते हैं हम 1 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, तो माइनस 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम। ठीक है, ये हो गया हमारा चार्ज। सो इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट के जरिए जो मिलीकन से उन्होंने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट किया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? ओके, अब ये हमको मालूम हो गया। ओके, ये चार्ज हमको मालूम हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको मास निकालना है। ठीक है, अब हमको मास निकालना है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, ये चार्ज है, चार्ज हमने निकाल दिया है। ठीक है, अभी क्या करेंगे हमको क्या मालूम है, चार्ज और मास रेशियो मालूम है। ठीक है, मैं लिखता हूं, ठीक है, तो चार्ज हमको मिल गया, तो हमको मालूम है चार्ज टू मास रेशियो क्या है, चार्ज टू मास रेशियो, मास रेशियो हमको पता है, जो जे थॉमसन ने निकाला था, E by m। ओके, E by m, E कितना आया था,
minus 1.75 into 10 raised to the power 11 coulomb kg inverse. ओके, तो अभी हमको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू इसका फार्मूला है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस ये चार्ज टू मास रेशियो। ओके, चार्ज टू मास रेशियो, और ये कितना है? तो हम याद लिख सकते हैं E बाय m। ओके, तो E बाय m यहाँ पे लिख सकते हैं। E कितना है हमारा? चार्ज कितना है? तो चार्ज है हमारा -1.602 into 10 raised to the power -19 कूलम। ओके, -19 कूलम आ गया था। ठीक है, और ये चार्ज का मास हमारा कितना आया है? -1.75 into 10 raised to the power 11 कूलम पर यहाँ पे kg इनवर्स लिखेंगे। ये कूलम कूलम कैंसिल हो गया। ठीक है, कूलम कूलम कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू ये माइनस अगर हमने क्या कैंसिल कर दिया तो उसका जो चार्ज है, उसका चार्ज है कितना आएगा? 9.11 10 raised to the power -21 किलोग्राम। कितना आता है? 9.11 into 10 raised to the power -21 किलोग्राम आता है। ओके, और ये जो this was the mass of electrons. So in this way Millikan's found the charge on electrons and also found the mass of electrons. Okay, तो आपको पता है इस mass of electrons जो है, इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन एटम से भी 1836 टाइम्स छोटा है। ओके, मींस यहाँ पे हम लिख सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 186 times less than the mass of hydrogen atom, ठीक है, इतना छोटा है। और इसी के वजह से हम जो मास है इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है निग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। मतलब जब हम एटॉमिक मास निकालते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है हम कंसीडर नहीं करते, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कंसीडर करते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आएगा, आशा करता हूँ। ठीक है, बाद में हम नेक्स्ट क्लास में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी देखेंगे। तो तब तक हम ये समझ में आ गया होगा आपको। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।